remember तो अगर वो कर ले what was asked though. I know the discussion मगर I don't exactly remember the question. नीचे में था। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ना ओवरऑल, इसी तरह से फिर मार्केट पे आ जाएंगे। So here is top of bull cycle. It was an amazing all season where almost all alts did 5-10x. Now people are cashing out. The market cap is up by 700%. It's at 13 trillion now. Crypto acceptance as a payment option is still not trending among many countries yet. People start cashing out in USDTs, BUSDs, and other stables. Do we have enough stable coins? Are they backed by actual dollar currency? Or this is where the breach happens and Okay. I think इसमें जो है generally simultaneously ना you have to consider a few factors. पहली बात ये है कि if you just go on Twitter या if you look at YouTube influencers and whatnot, you will eventually see कि everybody has their own bias towards what the cycle top is. And it's not just Bitcoin, it's every other coin what they think or they want to मतलब shill, right? अभी इसमें जैसे शीबा अभी the other day I was watching कि किसी बंदे ने मतलब top of the line fundamentally solid coins उन्होंने कहा जी के coins you should have in your portfolio, and then at the center it was Shiba just because Shiba had its run, right? And you could easily see that none of the other 5-6 not even remotely relate to what they offer and what Shiba offers. Considering the hype and everything, not taking away the fact that people have actually made money off of it. Everybody's here to make money, but just saying from investment standpoint. So that is what everybody has and everybody has their own bias. मगर issue ये है कि जो आपने देखना वो ये है कि आपने and this is just my personal opinion, and this is based on what I've learned so far from January till today, because we have gone through a bull season, we have crashed, we come back and right close to the ATH as well for Bitcoin. तो उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर प्लान in terms of what आपके जो horizon है, what term are you looking for, how long do you want to stay in crypto, when do you want to cash out, what are your long term plans, and so on and so forth, right? Because if that is the case, then जो bull cycle है उसकी definition will change for you. अगर आप कहते हैं कि यार no, I just want to cash in on the sentiment कि भाई bull cycle है, I want to gain money, then the best possible option for you is to swing trade and do more trades repeatedly. क्योंकि issue ये है कि then आपको जो सबसे बड़ा concern है आपका वो ये है कि यार when will the market is going to crash, right? Or you don't want to do that. आपकी जो profit है, जो statement है जी कि you're not in loss until you sell, it goes the other way as well. Unless you sell your coins, unless you sell your trade, that is unrealized profit, right? It can come down as well. क्योंकि अगर and that also depends कि आपने जो है वो क्या आपका जो plan है वो outside crypto क्या है, मतलब whether you want to cash out because you need money for something else, मतलब आपने उसको fiat में convert करना है, या you just need मतलब USDT for another project and so on and so forth. So ये 4-5 चीजें जो ना that I think dictate more what you think is a bull cycle top is, right? Because the thing is कि if anybody has followed crypto, he or she knows कि भाई all it takes is a couple of 15, not even 15, couple of 5-minute candles to kind of destroy all the hard work you've done. तो इसलिए to me, if you are not a long-term investor, if you're not in crypto to stay, and you're not worried about and you're worried about your unrealized profits, then the best approach is swinging. And then you don't have to put in efforts on fundamentally strong coins or like read about coins and projects and so on and so forth, because then आपके पास जो सबसे बड़ा threat है आपको वो ये है यार what if the market crashes tomorrow. एंड मतलब उसके एग्जांपल में आपको देता हूँ कि मेरी फर्स्ट डॉट की जो परचेज थी दैट वाज राइट अप एट $40, राइट, एग्जांपल दे रहा हूँ. और उसकी रीजन ये है कि मैंने डॉट स्टडी नहीं किया था, आई वांटेड टू स्विंग इट, राइट, उस टाइम पे भी, मगर मार्केट क्रैश. मगर पॉइंट इज आई वाज नॉट वरीड, क्योंकि मेरा डॉट का इन जनरल क्रिप्टो का होराइजन इट इज नॉट शॉर्ट टर्म. आई वाज लाइक whether DOT is going to be 40 ever again, the answer is yes, right? So that's why I was not worried. और मैंने उसको liquidate भी नहीं करना था, इसलिए I was not worried at that time कि भाई DOT मैं in a loss and whatever, right? मगर अगर आप जो हैं
इसी तरह और फराबी जैसे है, फराबी ही टोल्ड मी टू बाय डॉट एट $7, मगर उसके पास अपना इन्फॉर्म डिसीजन था, ही केप्ट बाइंग एक्यूमुलेटिंग इट। और इस तरह की चीज़ अभी भी अगर आप देखो, इवन इफ द मार्केट क्रैशेस, पीपल वेरी वेल नो कि डॉट इज नॉट गोइंग टू बी एट $7। आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल। तो दैट डिफाइंस आपकी जो है ना, आपका जो रिस्क मिटिगेशन थ्रेशोल्ड है ना, दैट इज व्हाट it's based on. You need to know where do you stand in a coin's total run, where do you stand in a coin's total run against Bitcoin, and where do you stand based on your portfolio, overall portfolio in the bull cycle. I think these are the factors that you need to consider. Or if you're way down, then you should not be worried about a bull cycle. You should actually about a bear cycle. You should actually consider that as a welcome opportunity to load up. जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इवन स्टॉक्स में भी बहुत कम लोग ऐसा होता है कि वो if something has a huge potential, they actually consider every dip as a buying opportunity. They try to save money from by swinging other stocks, in case में आप कह लो other coins, and put in good coins, right? That is the approach that you should have. और मेरा उसके बाद I'll just give the floor to somebody else as well. But जो concluding remarks वो यही है कि आपने जो है ना सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना जो है ना थ्रेशोल्ड डिफाइन करना है, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर मनी एंड यूर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, regardless of the bull cycle. Don't let anybody else define what the bull cycle is. People were saying Bitcoin का bull cycle जो है ना वो 30K पे भी होगा. That is it. और दूसरा एक और जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि बबल बस्ट तो मेरे ख्याल में 2013 से हो रहा है। 2013 में भी यही बात थी कि बबल बस्ट होगा, और काफी लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया कि अक्टूबर में मार्केट क्रैश होगी। बट सीइंग हाउ रिटेल इज बिहेविंग, स्पेशली विद शीबा एंड ऑल दीज कॉइन्स, इसमें काफी कुछ चीजें चेंज हो गई हैं ओवरऑल मार्केट में। लोगों को अब समझ भी आ गई है कि आपने डिप पे लेना है, मार्केट को कैसे आपने सस्ते कॉइन्स उठाने हैं, तो वेट करना है और आप आगे चले जाएंगे। दैट वुड आल्सो ब्रॉट द मार्केट बैक। और ये बात ही कह ली कि हर किसी का अपना एक डेफिनेशन है इसकी कि व्हाट इज द साइकिल टॉप। फॉर सम पीपल इट इज 100K, फॉर सम इट इज 120K, एंड फॉर सम इट इज $1 million। तो और दूसरा एक ही कंसर्न उसमें जो आपने शो किया कि भाई आपके ये जो सारे लोग एकदम क्रैश में सारे कन्वर्ट करते हैं यूएसडी में या स्टेबल्स में आते हैं, नहीं, सारे नहीं आते हैं स्टेबल्स में, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा कि जो फिएट करेंसी है जो कि नॉर्मल हमारे पीकेआर यूएसडी है, वो भी गोल्ड से बैक्ड नहीं है। सो आप आग चले जाएं 50 लाख कैश लेने किसी भी बैंक की ब्रांच पे, तो उनके पास नहीं पड़े होते कैश। तो ऐसा नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और उसके अलावा हर लोगों की अपनी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। हमारे इस ग्रुप में काफी लोगों ने पूछा कि जी आप पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी बताएं, वो भी हम नहीं बता सकते। एवरीबडी हैज देयर ओन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग मनी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग मनी, इट्स टोटली डिफरेंट। तो इसका बस यही एक है कि ऐसा जब होगा, तो वो जब क्रिप्टो का बबल बस्ट होगा, तो वो फिर इट हैज टू बी वेरी बिग न्यूज। उस वक्त तक पहले पता लगने लग जाता है। जो जैसे हम कभी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं देते ना कि इतने पे जाएगा या इतने पे चला जाएगा बीटीसी, बिकॉज व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि आप मैक्रो विजन रखते हैं चीजों का, मार्केट का हमेशा मैक्रो विजन देखना होता है। तो मैक्रो इंडिकेटर्स कोई भी बेरिश नहीं थे बीटीसी के लिए। चाइना का फर्क था, हैश रेट गिरा, हैश रेट से आपका बीटीसी भी नीचे गिरा। अभी में एक और इसमें काफी ज्यादा हेज फंड्स इन्वॉल्व हैं पिछले उसमें जो क्रैश हुआ था 30K पे। तो लेकिन ओवरऑल ये इस तरह की स्विंग ट्रेड्स होती रहती हैं। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि एक ही वक्त में सारे कैश आउट करने लग जाएं और सारे स्टेबल्स में आ जाएं। सो इट्स नॉट रियली पॉसिबल, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है। कुछ लोग ईथ ले लेंगे, कुछ लोग कुछ और ले लेंगे, दे विल सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। सो ऐसा मुश्किल है, हो सकता है, यस पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर आपको स्टेबल्स में भी चले जाएं, स्टेबल्स के बाद फिर आपको फिएट में लेके जाना है, वो कैसे करेंगे? और अभी सिर्फ स्टेबल्स के अलावा हम लोग समझते हैं कि हम आ सकते हैं इसमें, सिर्फ स्टेबल्स में आ सकते हैं। नो, ऐसा नहीं है। काफी एक्सचेंजेस हैं जो आप अपना कॉइन बेचें डायरेक्ट यूरोज में, डॉलर्स में, कैनेडियन डॉलर्स में,
और आप बाइनेंस में डायरेक्ट अपनी फिएट करेंसी में चेंज कर सकते हैं अपना जो भी है, और उसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लें। एग्जैक्टली। एक और मैं चीज, सॉरी कंटिन्यू। नहीं यही है बस, दैट इज द नहीं मतलब एक और चीज आप देखना कि जो जो टोटल आपकी क्रिप्टो की मार्केट कैप है, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, मतलब दैट इज अ ह्यूज चंक ऑफ मनी। इट कैन नॉट जस्ट गो अवे। ठीक है, बबल है, डिप आएगी, करेक्शन होगी, स्टॉक्स में भी हुई थी अभी इवन बिफोर क्रिप्टो जो अर्ली मार्च अप्रैल में करेक्शन आई थी। एवरीबडी इनिशियली थॉट कि नहीं बस तो थोड़ी सी करेक्शन है, मगर पॉइंट इसके प्रॉफिट टेकिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप एसपीएस 500 वगैरह देख लें तो इट कंटिन्यूज टू डिप एट रेगुलर इंटरवल्स, मगर ओवरऑल जो है वो गेन कर रही है, राइट। जो एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि दो दो बेसिकली जो है ना एलिमेंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे क्रिप्टो का फ्यूचर। एक इज द एडॉप्शन विच वी ऑलरेडी सीइंग इज गोइंग एट वेरी फास्ट पेस। दूसरा है जो आपकी कंट्रोलिंग फाइनेंशियल जायंट्स हैं, हाउ विल दे सी क्रिप्टो इन जनरल। इफ दे जो कहते हैं ना, इफ यू कैन नॉट बीट देम जॉइन देम, दैट इज जो है ना एन अंडररेटेड स्टेटमेंट। Nobody likes to lose control। जो बैंक्स हैं उनका सबसे बड़ा इशू ही इस टाइम ये है कि भाई जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है और मतलब जो क्रिप्टो की एसेंस है, दैट इज टेकिंग अवे दी आप कह लें लाइमलाइट फ्रॉम द बैंक्स। खासतौर पे एनएफटीज ने मतलब दे हैव काइंड ऑफ एडेड मोर फ्यूल टू द फायर वाली बात है कि मतलब यू कैन सेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर अ पीस ऑफ डिजिटल इमेज, एंड देन जस्ट लाइक दैट आपकी जो इवन ब्लैक मनी भी है दैट इज नाउ वाइट, राइट। देयर इज अ रिकॉर्ड कि भाई आपने इससे ये खरीदा था, दैट्स इट। तो एक वो फैक्टर है। तो और जो नई चीज़ है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे इवन वेस्टर्न और जो यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं, जो अगर जो रेगुलेशंस वाला फैक्टर ना वो इस तरह नहीं है कि मतलब वन फाइन डे जो है ना एक जो गवर्नमेंट एंटिटी है इट विल जस्ट कम एंड से जी के crypto has to be regularized and that's it। मतलब if you are not if you don't give us all of your information you cannot use any exchange। that is not going to happen। ये होगा with a slow pace। अभी मैं उस दिन देख रहा था कि Binance जो है ओंटारियो में, मतलब इधर मैं कनाडा की बात करूँ, Binance ने कहा जी कि after December 31st in Ontario we will not support जो है ना user accounts that have their IP from Ontario, so you need to shift to a different exchange। that is fine। Huobi ने कहा जी कि we are ceasing support for Canada for the whole country, मतलब Canada wide support नहीं है, you need to move your funds out by December 31st। मगर on the other hand आपके पास crypto.com है, आपके पास Newton है, Kraken है, Coinbase है, Bittrex है, all of these exchanges what they are doing is कि progressively they're saying कि भाई we are collaborating with another firm, we are going to मतलब they send you out emails कि भाई जो हमारी जैसे कनाडा की रेवेन्यू एजेंसी है, they've told us to give them user data। जैसे CoinSmart के पिछले दिन ईमेल आई हुई थी, they've mentioned it to all the users कि भाई we are bound by CRA to give them all user data so that you can see how much money an individual is making, and that is doable because they have their own KYC एट द बैक। आपने अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है, आपने अपना एड्रेस बताना है, सोर्स ऑफ फंड्स बतानी है, अपनी ऑक्यूपेशन बतानी है। तो बैक एंड पे ये चीज़ें चलती आ रही हैं और ये ऐसे ही होगा। वन फाइन डे जो है ना, इट्स नॉट कि वन फाइन डे जो है पीपल विल जस्ट से कि भाई आई कैन नॉट लॉग इन टू माई अकाउंट क्योंकि जी किसी का फंड आ गया है, या जी के जो है ना मैं तो अननोन किसी और नाम से था और नाउ आई कैन नॉट डू इट। यू विल हैव टू इवेंचुअली गेट गोइंग विद दिस। और उससे होगा ये कि जो जितने भी ये फाइनेंशियल जायंट्स हैं, मेरी जो असेसमेंट है वो ये है, द मोमेंट दे ग्रैब अ मेजर चंक ऑफ क्रिप्टो यू विल सी क्रिप्टो गेटिंग रेगुलराइज एट अ पेस कि आप अपने कभी सोची भी नहीं होगी। अभी सिर्फ जो फंड है वो सिर्फ इसलिए आता है कि जी इनको पता है कि यार पीपल जो क्रिप्टो का एसेंस है दैट इज लाइक अ कंपटीशन अगेंस्ट दिस जो मोनोपोली इफ यू वांट टू कॉल इट, राइट। तो द मोमेंट द बैंक्स ग्रैब अ मेजर चंक ऑफ इट, चाहे आप जैसे डिजिटल युआन की बातें होगी, डिजिटल डॉलर की बातें हो रही थी, राइट, क्योंकि पैक तो है नहीं और जो है वो बैक पे गोल्ड भी नहीं है। तो और इसी तरह जिस तरह रवि ने इनिशियली बोला कि ऑल यू हैव जो आपके नंबर आपके अकाउंट में शो हो रहा है दैट इज जस्ट वन डिजिटल नंबर, इट्स नॉट बैक्ड बाय प्रिंटेड मनी, राइट। तो आप कुछ परचेज करते हैं, इट गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट, आपको सैलरी आती है, इट गेट्स एडेड, मगर यू डोंट नो वेदर द बैंक एक्चुअली हैज प्रिंटेड मनी और एट विच दे डोंट। और इधर भी यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा, यहाँ तो ये नॉर्थ अमेरिका यूरोप ये तो 40 क्रेडिट पे रहा है, राइट। एग्जैक्टली यूरोप तो सारा ही क्रेडिट पे है ओवरऑल भी। तो हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इट्स जस्ट अ नाइस थॉट टू थिंक, बट ऐसा होना इन अ फोरसीएबल फ्यूचर तो ऐसा नहीं है। वो वाली की बात ठीक है कि आप अपने गेन्स जो हैं वो कन्वर्ट करते रहें, इन द एंड सब पे ही सबकी इंडिविजुअल पॉलिसी है, उनकी स्ट्रेटेजी है हाउ दे वांट टू टेक द प्रॉफिट, लेकिन आप जरूर लें क्योंकि हम रेगुलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं और चीजें
आई थिंक डिफरेंट होंगी, बट एक और फैक्टर है रिटेल का। रिटेल ने ही निकाला है बीटीसी को अभी, ये रिटेल ही शिबू में डाल रही है, वो बड़ा बैंकर नहीं डालता है, दे प्ले सेफ मनी। हेज फंड्स क्यों डालेंगे किसी का इतना सारा पैसा, दे हैव टू आंसर देम व्हाई दे इन्वेस्टेड इन मीम कॉइन। सो देयर विल ऑलवेज बी अ फाइट बिटवीन रिटेल एंड द बैंक्स। तो ये जो हेज फंड्स हैं ये भी आप बैंक ही समझ लें, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ बीटीसीज, दे कंट्रोल द मार्केट एंड एवरीथिंग। बट ओवरऑल इट विल ऑलवेज बी, अगर बैन कर देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका जब तक इंटरनेट है ब्लॉकचेन नहीं बैन हो सकती, और डिसेंट्रलाइजेशन है। सो इन मैक्रो विजन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। कभी होगा, हाँ होगा, लेकिन आपको पहले पता लग जाता है। ऑलवेज सी कि जब आप न्यूज देखते हैं या पढ़ते हैं और आपको एक रेपिटेटिव मैनर नजर आए, आई गिव यू अ हिंट जो कि हम उस पर चलते हैं ओवरऑल। इफ यू सी अ न्यूज, सेम न्यूज फ्रॉम 3 to 4 डिफरेंट सोर्सेज, देन यू विल नो कि एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। वो नैरेटिव जो है वो बिल्डअप कर रहे होते हैं, एंड देन वी नो कि अच्छा अब ये डिप आने लगी है, या ये अब ऊपर जाने लगा है बीटीसी। सो दिस इज ऑल सेंटिमेंटल मार्केट मोर और लेस। तो इसके Yeah. टेक्निकल्स, तो बीटीसी के क्या टेक्निकल्स हैं? इफ बीटीसी इज बुलिश एंड गोज टू 100K, इट कैन गो राइट नाउ, एंड बीटीसी इज बेरिश, इट कैन रियली गो टू 40K राइट नाउ एज वेल। तो क्रिप्टो मार्केट तो ऐसी है, यू नेवर नो द नेक्स्ट मिनट व्हाट्स गोना हैपन। आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो मेरे ख्याल से बुल साइकिल टॉप की डेफिनेशन से जो है ना, आपने एन एन इंडिविजुअल लेवल यू नीड टू नो व्हाट इज योर एब्सोल्यूट बेरिश बॉटम। अभी आई एम नॉट श्योर, इलियास हमारे साथ नहीं है अभी मीटिंग में, मगर आई रिमेंबर जब ये मार्केट क्रैश हुई, मतलब स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल डिप, उसके बाद टेस्ला एंड देन चाइना एंड सो ऑन सो फॉर्थ, एंड वी वर लुकिंग एट वीक बीटीसी इन द 30 to 40 रेंज। इलियास, आई नो ही वाज एब्सोल्युटली डेड श्योर कि जो है ना बिटकॉइन विल नॉट स्टे बिलो 30, और वो एंड ही वाज द ओनली वन, he was the only one who he kept saying repeatedly कि भाई बिटकॉइन 30 से नीचे ठीक है विक आ जाएगी, मगर 30K is like a fortress for बिटकॉइन। अगर 30 से नीचे जाएगा तो फिर वो 18 पे भी जाएगा, and he was absolutely spot on, right? मतलब वो it had its momentarily 28 29 पे थोड़ा सा होवर किया, then it shot back up, right? तो आपने अपनी हर कॉइन की, and this is for, or even if you want to cash out at any point, ये आपके अपने, this is a trade साइकी, आपने अपने हर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में जो कॉइन ना उसकी एब्सोल्यूट बॉटम सेलेक्ट करके रखनी है रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। अगर आप प्रॉफिट में हैं तब भी, अगर आप लॉस में हैं तब भी, सो दैट यू नो कि यार दिस इज माय रिस्क थ्रेशोल्ड, इससे नीचे अगर ये जाएगा आई विल सेल इट। क्यों? क्योंकि भाई हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन शोज कि जब बिटकॉइन क्रैश होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कॉइन ले लें, लेट्स से डॉज ले लें फॉर एग्जांपल, जस्ट जब बिटकॉइन क्रैश होता है तो माई कॉइन डॉज जो है वो उससे ज़्यादा जो है ना twice the speed crash होता है, right? It loses steam twice with twice speed, so I don't want to risk it. तो मैं जो हूँ अभी मेरी प्रॉफिट, if I'm 200% profit, जब मैं 100% पे हूँगा, that is my absolute bottom, I will get rid of it, right? इसी तरह क्योंकि उसका होगा ये तो उसका फायदा ये होगा कि आपके जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो और आपके जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। बिकॉज जो कॉइन आपने स्विंग में पकड़ा हुआ है, जो आपका प्रॉफिट में, यूल नो कि यार इससे मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और देन यू कैन यूज दैट कॉइन टू बाय द डिप ऑफ द अदर वन। वो बात ठीक है कि लोग कहते हैं यार मेरा कॉइन जो है, मतलब आई बॉट इट एट 10, वो 20 पे गया, मैंने नहीं बेचा, वापस 10 पे आ गया, तो मेरा तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया। मगर यू हैव टू रियलाइज कि ये दूसरी तरफ ही जा सकता था, राइट? इट कुड हैव गॉन द अदर वे, और वो आपका 100% लॉस में होता, देन यू वुड हैव प्रेड यार किसी तरह ब्रेक इवन पे आ जाए, और आप फिर उस पे कहते हैं यार जब, और खास तौर पे जो लोग फ्यूचर्स करते हैं, जब ब्रेक इवन पे आ जाता है देन दे लाइक नहीं यार थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं, देन दे मेक द सेम मिस्टेक अगेन। तो साइकिल टॉप से मेरे नजदीक, एंड दैट्स हाउ आई सी इट, कि इट इज more important than you define on your absolute bottom for all the coins you have in your portfolio, so that you know when to get out. और बात वही है, क्रिप्टो इज here to stay. इट्स नॉट कि अगर आपने सालाना $2 का लिया था तो भाई अब कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आएगा जो आपको इतना सस्ता मिलेगा नहीं। गुड फॉर यू अगर आपने उसको होल्ड किया, राइट? मगर पॉइंट इज कि आगे भी प्रोजेक्ट्स आएंगे और आते रहेंगे, मतलब एज इट ग्रोज इट विल इवॉल्व, एंड यू विल सी कि टुमारो जो है देयर विल बी अ प्रोजेक्ट जो सालाना को compete करने आ जाएगा फॉरन। और इसी में हमने एग्जैक्टली, और लास्ट टाइम हमने इसलिए इस पे भी एम्फसाइज किया था कि यू हैव टू रिसर्च एंड लर्न अबाउट प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है और उसको आपने लॉन्ग टर्म रखा हुआ है, इवन 3 महीने के लिए भी रखा हुआ है, देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच दे डोंट परफॉर्म इवन इन 3 months, दे डोंट, उनका रोड मैप नहीं क्लियर होता।
सो यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दोज कॉइन्स। लेकिन जब आप उनको फॉलो करेंगे या कुछ करेंगे, अदरवाइज तो इट्स ऑल तुक्का, और वो तुक्के में इन द एंड यू आर लाइक 2 + 2 इक्वल फिश इन द एंड। और ऐसा होता है अनरियलाइज्ड गेन्स में। आप इन अ सेंस के हम लोग सारे तो इन्वेस्टर और ट्रेडर की ही गलती होती है, मार्केट का कोई कसूर नहीं है। मार्केट कैन गो बेरिश, मार्केट कैन गो बुल, उसमें आपको खुद अपना थ्रेशोल्ड डिफाइन करना है। अली हैज सेड करेक्टली, एब्सोल्युटली। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उस पे थैंक यू अली। बिलाल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है HNT, हीलियम और IoT इन जनरल। तो उस पे हम्म कुछ पढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली यार वो क्या कहते हैं, स्टेबल कॉइन्स का बेसिकली जो बैकिंग वाला क्वेश्चन था, तो उसमें डिपेंड करता है। कुछ स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो मतलब बैक्ड हैं, जो उनका क्लेम है कि वो बैक्ड है बाय डॉलर, और कुछ जो है वो एल्गोरिथमिकली बैक्ड हैं। तो लेकिन स्टेबल जो है उसका कोई ना कोई बैकिंग होना ज़रूरी है, मतलब किसी चीज़ के साथ वो पैक्ड होता है। अब जिस तरह आपका USDT है, USDC है, तो वो जो है वो बैक एंड के ऊपर जो है डॉलर्स प्लस डॉलर इक्विवेलेंट्स के साथ बैक्ड है। तो 1 to 1 मतलब एटलीस्ट क्लेम ही है। लेकिन जिस तरह आपका डाई है वो आपका एल्गोरिथमिक वो है स्टेबल कॉइन, और UST है वो भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, वो टेरा की प्राइस की बेस पे वो पेग होता है। तो मतलब वो डिफरेंट है, लेकिन इन दी एंड आपका स्टेबल जो है वो किसी चीज़ के साथ पेग है, किसी वैल्यूएबल चीज़ के साथ पेग्ड है। तो मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पीछे बैकिंग है सॉर्ट ऑफ हर स्टेबल कॉइन की। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली जो आइडिया है वो इस तरह है कि अगर कंसिडर करें, मतलब अभी जो इंटरनेट के यूज़र्स हैं तो वो तो सारे ह्यूमंस हैं ना, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, हम फ़ोन पे यूज़ कर लेते हैं, PC पे यूज़ कर लेते हैं, टैबलेट पे, वट कार में। तो इन दी एंड आपका जो एंड यूज़र है वो बेसिकली ह्यूमन है। तो अभी इस वक्त जो है आपके सॉर्ट ऑफ 7 बिलियन आपके ह्यूमंस हैं, तो आप समझ लेंगे आपके 10 बिलियन जो हैं वो मतलब यूज़र्स हैं इंटरनेट के। लेकिन जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके जो डिवाइसेस हैं, जो कि मतलब स्मार्ट डिवाइसेस हो सकते हैं, कोई सेंसर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे जो हैं वो भी आपके इंटरनेट के कंज्यूमर्स हैं। तो इस केस में बेसिकली अगर हम एग्जांपल ले लें, तो जिस तरह हम 5G की बात करते हैं, तो 5G जो है तो वो LTE की जो है सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है, लेकिन मतलब काफ़ी बड़ी एक्सटेंशन है। जो LTE के अंदर आपका मतलब यूज़ केस था ब्रॉडबैंड का, मोबाइल ब्रॉडबैंड का, उसके अलावा एक दो और यूज़ केसेस थे। तो अभी 5G के अंदर मतलब जिसको हम टेक्निकली न्यू रेडियो कहते हैं, तो उसके अंदर आपके 3 जो हैं वो इम्पोर्टेंट आपके आपके एलोकेट डायरेक्शंस हैं, जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो 5G के साथ। तो उसमें एक आ जाता है इन्हेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, जो कि आप जो मतलब फ़ोन पे नेट यूज़ करते हो, तो आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए। तो मतलब मेरे ख्याल में 100 मेगाबिट से भी ऊपर है, शायद 300 मेगाबिट से इस तरह कुछ है। अ, तो और मतलब जो टारगेट है वो 1 गीगाबाइट पर सेकंड का है। तो उसके अलावा फिर आपका इन्हेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड है, मैसिव मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, ये आपका IoT वाला यूज़ केस आ जाता है। और एक आपका अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन आ जाता है। वो उस केस में है जिस तरह फ़र्ज़ करो एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपको एक रिलायबल लेकिन मतलब फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए कि आप जो है वो बता सको कि इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे एम्बुलेंस ने आना है, या जो भी। तो जो मैसिव मशीन कम्युनिकेशन वाला जो यूज़ केस है ना, वो 5G के अंदर भी है, और वो बेसिकली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको उबिक्विटस या यूबिक्विटस कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस है वो हर जगह अवेलेबल है। मतलब अगर आप हाइकिंग पे जाएं, आपका सिग्नल नहीं आता क्योंकि वहाँ पे कोई टावर नहीं है आसपास, ठीक है। लेकिन आइडियली जो है आपकी जो नेटवर्क है वो इतना फैला हुआ होना चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट पे हो, आपके पास सर्विस आ रही हो, और सर्विस आपके पास जो है वो रिलायबल आ रही हो, और ये सारा कुछ हो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आ जाता है उसके अंदर फिर आप इस तरह एग्जांपल ले लें कि जिस तरह फ़र्ज़ करें आपका स्मार्ट होम है, ठीक है। अभी जो स्मार्ट होम वाला कॉन्सेप्ट है, आपके पास वो आते हैं, क्या कहते हैं, प्लग्स आते हैं, लाइट्स आती हैं, उसको आप मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो सारा कुछ। लेकिन अगर आपके पास मतलब रियली स्मार्ट होम है, तो आपके डिवाइसेस जो हैं वो खुद ही
मतलब कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। अभी भी वैसे है ये किसी हद तक, लेकिन मतलब आप कह सकते हो कि जिस तरह आपके कमरे में सेंसर्स लगे हुए हैं, आपने कह दिया कि जी 25 डिग्री पे टेम्परेचर रहना चाहिए, सेंसर जो है वो कम्युनिकेट करेगा आपके सेंट्रल डिवाइस के साथ खुद ब खुद। वो सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो उसको कहेगा कि भी टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, अब जो है वो एयर कंडीशनिंग ऑन कर दो या जो भी। अनदर एग्जांपल ले लो, गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कोर्स के अंदर अब जो गोल्फ कोर्स को मेंटेन करने वाले हैं, उन्होंने सेंसर्स लगा दिए डिफरेंट जगह पे ग्रास में, और अब वो जो सेंसर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि किस जगह इरिगेशन होगी है, किस जगह नहीं हुई, और मतलब इधर सॉइल ड्राई हो रही है, सॉइल की कंडीशन आपको बता रहे हैं। उसकी बेस पे जो है वो स्प्रिंकलर के साथ वो सेंसर खुद ब खुद कम्युनिकेट कर रहा है, स्प्रिंकलर आपको पानी ऑन कर देता है, तो आपका जो मतलब है ग्राउंड गोल्फ कोर्स जो है वो इरिगेट हो जाता है। लेकिन अब इस केस में इशू यहाँ पे आ जाता है कि अब अगर आप इस तरह के सेंसर्स लगा दोगे तो उसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार जाके सेंसर्स की बैटरी तो नहीं चार्ज करोगे। और दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं, जो कम्युनिकेशन है वो उसकी मतलब मेंटेन रहनी चाहिए। अगर वो सेंसर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन अगर वो नहीं कर सक रहा, तो वो भी एक इशू है। तो ये सारे जो हैं ये सारे आइडियाज़ हैं। तो अगर मतलब इंडस्ट्रियल सेटिंग में भी आप कह सकते हो कि सारे रोबोट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कार्ड सारी जो जा रही हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस केस में अगर आप इस तरह देखें, तो फिर आपके जो डिवाइसेस सिस्टम आ जाएंगे ओवरऑल सिस्टम के अंदर, वो 100 बिलियन या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप कहें कि इस तरह डिफरेंट सेंसर नेटवर्क्स लगे हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो ये बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला जो ओवरऑल पिक्चर है वो ये है। अब इसके अंदर जो है हीलियम किधर से आता है, तो हीलियम बेसिकली, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ओके, गो लाइव, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? Yeah, we Yeah. can. Okay, so basically let's see, हीलियम। सो हीलियम बेसिकली जो है वो ये कह रहे हैं कि हम जो है पीपल पावर्ड नेटवर्क है, ठीक है, या पीपल्स नेटवर्क भी वो इसको कह रहे हैं। अब हीलियम का कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि मतलब अगर आपके मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। मतलब जब हम वाईफाई यूज़ करते हैं तो हमें जो है वो कनेक्टिविटी हमें अपने वाईफाई एक्सेस पॉइंट से आती है, ठीक है। हम अपने एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं, हम वाईफाई यूज़ कर लेते हैं। अब इस केस में अगर मतलब जिस तरह मैंने आपको कहा 5G का जो है वो भी एक यूज़ केस है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। 5G जो है उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लो पावर डिवाइसेस को सपोर्ट कर सके, और जो है ना क्या कहते हैं, मतलब लो डाटा रेट, लेकिन मतलब एक्सप्लेन करूँ मैं, बेसिकली अगर आप फ़ोन में कम्युनिकेट करते हैं तो आपको एक सर्टेन पावर लेवल चाहिए होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए, खास तौर पे अगर आपको जितना आप डाटा रेट यूज़ कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन जो आपके सेंसर्स हैं, आपने बेसिकली अगर उसने सिर्फ आपको ये बताना है, फ़र्ज़ करें जो मेरी गोल्फ कोर्स वाली एग्जांपल थी कि मतलब सॉइल की इस वक्त कंडीशन क्या है, उसको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो हो सकता है वो एक ही पैकेट, छोटा सा पैकेट कुछ किलोबाइट्स का हो, वो बता दे कि जी ड्राई है और इरिगेशन स्टार्ट कर दो या जो भी स्प्रिंकलर ऑन कर दो। तो मतलब आपको बड़ा मतलब डाटा रेट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, और बेसिकली आपको जो है सिर्फ कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी सॉर्ट ऑफ चाहिए और लॉन्ग रेंज चाहिए। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस पॉइंट लगाने पड़ेंगे तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपका एक गोल्फ कोर्स है और आपको हो कि जी मुझे तो हर जो है वो 10 मीटर रेडियस के ऊपर एक एक्सेस पॉइंट लगाना पड़ेगा अपने सेंसर्स के लिए, तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। और दूसरा आपको मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं है सच। तो ये जो हीलियम का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है कि बेसिकली ये आपके एक्सेस पॉइंट्स हैं, जो कि इस केस में हीलियम वाले आपको खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, मतलब पैसों का, फ्री नहीं। तो इसमें फिर ये है कि ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन है। तो लॉन्ग रेंज जो है, अगर इधर मैं माइन पे जाऊं, तो वो इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज वायरलेस एक्सेस नेटवर्क। तो यहाँ पे कहीं पे यूज़ हुआ था, खैर ये उन्होंने लॉन्ग फाई भी उसका नाम दिया हुआ है, मतलब उन्होंने खुद से इसका नाम रखा हुआ है लॉन्ग फाई। लेकिन बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब आप एक लो क्या कहते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी इतनी वो नहीं है, मतलब लो कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए आप जो है अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन वो इसी तरह डिवाइसेस को इनेबल करेगी आपस में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए।
और उसकी जो फिर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उसमें बेसिकली फिर क्रिप्टो कहाँ से आ जाता है? हीलियम का मेन विजन तो ये है कि मतलब एक ऐसा नेटवर्क हो जो कि इन हॉटस्पॉट्स का जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ हो, और जो है उसके बाद आप जो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करोगे तो वो उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन अब इसके अंदर क्रिप्टो यहाँ से आता है कि मतलब इतने सारे डिवाइसेस अगर हीलियम खुद से लगाए तो वो तो बहुत, एक तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, और दूसरा जो है वो मतलब फीजिबल भी नहीं रहेगा कि, क्योंकि आप किस तरह सेलेक्ट करोगे कि आपने कौन सा डिवाइस, मतलब आपको एक्सेस पॉइंट किस जगह पे चाहिए। तो नॉर्मली जिस तरह अगर आप मतलब जिस तरह सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं, जिस जगह पे साइट लगती है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि पहले आप लोग मतलब जो प्लानिंग वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमारी कवरेज नहीं है, यहाँ पे हमें कवरेज चाहिए। फिर जो साइट एक्विजिशन वाले होते हैं वो जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे जगह मिल भी सकती है कि नहीं। फिर बेस्ट वो 4 पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि इस पोजीशन के हिसाब से यहाँ-यहाँ हमें जगह मिल रही है। फिर वो दोबारा डिसाइड करते हैं कि बेस्ट कौन सा, मतलब लंबा खाता है। तो अब वो हीलियम वाले खुद से तो इस तरह नहीं कर सकते। दूसरा, अब अगर मतलब लोगों से उन्होंने बनवाना है नेटवर्क अपना, तो लोगों को कोई इंसेंटिव चाहिए। मतलब मैं क्यों एक डिवाइस हीलियम वाला चलाऊँगा, अपनी बिजली भी लगाऊँगा, सारा कुछ करूँगा। तो इस केस में मतलब उन्होंने ब्लॉकचेन को यहाँ पे इस तरह इनकॉर्पोरेट किया है कि वो आप बेसिकली सॉर्ट ऑफ मतलब आप उनसे डिवाइस खरीदते हो, आप नेटवर्क को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब ये एक्सेस एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हो नेटवर्क के अंदर। और सेकेंडली जब आपके डिवाइस जो है वो यूज़ होगा, मतलब कोई भी सेंसर या कोई भी डिवाइस, कोई आईओटी वाला डिवाइस आपके जो इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, उसको यूज़ करेगा, तो आपको उसके रिटर्न में जो है फिर हीलियम टोकन मिलता है। तो इसको उन्होंने वो हीलियम माइनिंग या उसका नाम दे दिया। तो अब इसमें मतलब आपने लोगों को इंसेंटिवाइज कर दिया कि आप ये डिवाइस खरीदो और आप जो है उसको मतलब उनके नेटवर्क को आगे बढ़ाओ। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इस तरह का है, जो कि मेरे मेरे ख्याल में काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो प्रीवियसली जो था वो ये भी पॉसिबल था कि आप जो है वो ये एक्सेस पॉइंट खुद से बना सकते हो रास्पबेरी पाई वगैरह के साथ एंटेना लगा के। लेकिन अब जो है उन्होंने इस तरह कर दिया है कि अगर आप खुद से बनाते हो तो आपको हीलियम रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आप मतलब नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको हीलियम रिवॉर्ड नहीं मिलेगा फॉर सम रीज़न। तो अगर आप उनका ये ऑथराइज्ड डिवाइस अगर आप बाय करते हैं तो इस केस में जो है वो आपको मतलब फिर हीलियम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो उसमें फिर ये है कि बेसिकली 233,000 या समथिंग हीलियम है जो पर मंथ जो है जितने भी लोग डिवाइस रन कर रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसमें चक्कर ये है कि जिस तरह जो है वो ये डिवाइसेस बढ़ते जाएंगे तो वो रिवॉर्ड पर पर्सन जो है वो कम होता जाएगा। जो इस साल के शुरू में जो हीलियम माइनर्स रन कर रहे थे तो उनको अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि उस वक्त मतलब ओवरऑल जो हीलियम नेटवर्क था उसके अंदर अराउंड 40,000 या 30,000 ये थे हॉटस्पॉट्स थे। तो पर पर्सन जो है उनको कोई 6 हीलियम पर डे या इस तरह कुछ मिल रहा था। तो अगर आप अभी हीलियम की प्राइस देखें तो वो 27.9 पे पहुंच गया है। तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लें आपको डेली की उस वक्त जो है कितनी बन रहे थे पैसे। तो ये काफ़ी मतलब फिट इंसेंटिव है। मतलब इवन अगर आप मई जून में देखें तो मतलब आप पर मंथ $3,000 से ऊपर आप बना सकते थे आराम से एक हीलियम डिवाइस रन करके। और हीलियम डिवाइस जो था मतलब ये जो हॉटस्पॉट है ये अराउंड $500 का आता है। लेकिन अब इस केस में इशू ये है कि क्या कहते हैं इसमें काफ़ी लंबी वेट लिस्ट है। 150,000 जो हैं वो हॉटस्पॉट्स अभी वेट लिस्ट के अंदर है। और सेकेंडली जो है वो हीलियम की वो होगी है, हार्विंग होगी है जैसे बिटकॉइन की हार्विंग होती है। तो जो रिवॉर्ड है वो भी हाफ हो गया जो आपको मिलेगा। तो खैर ये बेसिकली हीलियम की स्टोरी है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसा मैंने आपको कहा बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि मतलब सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और बेसिकली हीलियम का जो गोल है वो ये है कि अगर ये हॉटस्पॉट जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए होंगे, और मतलब ये हर हॉटस्पॉट जो है उसकी रेंज जो है वो फ्यू किलोमीटर्स है। मतलब अगर आप रेडियस में देख लो तो 10-15 किलोमीटर्स में बी मोर। तो अगर मतलब आप इस तरह के हॉटस्पॉट्स आपके पास हैं, क्या कहते हैं, आपके सिटी के अंदर जितने भी 15-20, तो आपका सिटी जो है वो मतलब कवरेज में आ जाएगा।
फिर इसी तरह अगर आप मतलब सबर्ब्स में भी किसी के पास है तो इस तरह मतलब करते 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 आपका जो नेटवर्क है वो आपस में कनेक्ट होता जाएगा। तो एंड आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और फर्स्ट करें इसका यूज केस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल चलें पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि जी बच्चे स्कूल गए हैं तो कहीं गुम ना हो जाएं या कोई कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कार है आपकी, सो यू कैन ट्रैक योर कार, योर चिल्ड्रन, योर पेट्स, एनीवन। मतलब आपको सिर्फ क्योंकि नेटवर्क ऑल ओवर द सिटी है, हम्म all it needs they are communicating with each other, so you get back the information. So इसके use cases बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा use cases हैं, that's why it's ये hit है। हम्म और इसका जो overall itself it's a project with the definite use case। और इसके पीछे टीम I am forgetting, कोई बहुत ही पॉपुलर इसमें यार वो है, इसके फाउंडर्स जो हैं एक तो अम, अमीर हलीम है, हाँ वो पुराना इंटरनेट वगैरह का और इस तरह मेरे ख्याल पता मुझे याद नहीं किस कंपनी में था, लेकिन वो काफी मतलब पहुंचा हुआ हाँ बंदा है। काफी एग्जैक्टली। सो ये प्रोजेक्ट पहले ब्लॉकचेन का नहीं था, ये एचएनटी टोकन बाद में आया, पहले ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन 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 वर्क था। वही मैं कह रहा हूँ इनका ना कॉन्सेप्ट बेसिकली, मतलब मैंने उसको अमीर हलीम की मैंने पूरी टॉक सुनी थी, तो वो ये कह रहा था कि मतलब द प्रोजेक्ट वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन अब ये आइडिया मतलब वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी से एक्सेस पॉइंट चलवाना है, वो क्यों चलाएगा, मैं क्यों चलाऊंगा, मतलब मैं। और दूसरा दूसरा या तो मतलब ये हो ना कि वो मुझे फ्री में दें, ठीक है, मतलब मुझे एक्सेस पॉइंट फ्री में दे दें, फिर मैं कहूँ अच्छा यार चलो ठीक है मैं आसान कर देता हूँ, मैं चला देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग नर्ड किस्म के या इस तरह के होते हैं जो कहते हैं कि हाँ चलो मतलब आई लाइक द आइडिया, ठीक है, मतलब मुझे ये तो बड़ा मजे का आइडिया लग रहा है, मतलब आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन मतलब हर कोई तो इस तरह नहीं होता ना, मतलब वो एक हो सकता है आप 1000 बंदे पकड़ लो, 10,000 बंदे इस तरह के पकड़ लो, और सेकेंडली आपको वो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा हर हॉटस्पॉट का। इस केस में मतलब उन्होंने इंसेंटिव आपको दे दिया ना कि आपको ये हीलियम टोकन मिलेगा, और इस हीलियम टोकन की बेस पे मतलब फिर आप डिवाइस भी खुद खरीद रहे हो अपने पैसों से ठीक है, और आप उनके नेटवर्क को भी एक्सपेंड कर रहे हो। अब उसके अंदर बेसिकली और चीज़ें भी आ जाती हैं, उसके अंदर वो उन्होंने और कॉन्सेप्ट भी डाले हुए हैं कि ओवर टाइम जो है वो जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो आपके नेबर्स हैं वो सॉर्ट ऑफ आपको पिंग करते हैं, मतलब नेटवर्किंग के टर्म्स में अगर बात करें तो सॉर्ट ऑफ आपको पिंग करते हैं, और फिर आपने जवाब देना होता है। उसका मकसद ये है कि मतलब उनको पता लगता रहे कि ये जो हॉटस्पॉट है ये लाइव है भी कि नहीं, बंद तो नहीं हो गया, और सेकेंडली ये उसी पोजीशन पे है जहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो ये एग्जैक्टली ये इसका यूज केस तो मैं और भी बहुत सारे देख रहा हूँ। ये आपकी जो मैं एक जगह और पढ़ रहा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और ये उसमें भी ये काफी ज्यादा यूज करने लगे हैं, जो ये इलीगल इमिग्रेशन है। सो यूरोप की एक कंपनी है वो काफी इसके बारे में सोच रही है कि बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं। दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आईओटी, एंड आईओटी comes under industry 4.0, which is the fourth revolution in industry। और क्योंकि यूरोप में ये ऑलरेडी अडेप्ट हो रही है, तो आपके जितने भी बिजनेसेस हैं अगर उनको अब 4.0 पे कन्वर्ट होना है, एंड आईओटी इज एक्चुअली द बैकबोन। सो जो भी प्रोजेक्ट आईओटी बेस्ड है, फॉर एग्जांपल आपके ये जो आयोटा है ये भी काफी ज्यादा इनका they started actually from with a project considering IoT in mind, और उसके बाद अब तो काफी वर्सटाइल हो गए हैं। सो देयर इज अ लॉट टू डू। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल भी है, इन यूज भी है, ऑलरेडी हो रहा है यूरोप में, यूएस में, तो ये एशिया में भी आएगा। और एनीवन कैन बिल्ड देयर ओन नेटवर्क। अगर आपके पास 6-7 डिवाइसेस हैं, यू कैन कवर, नहीं अगर आपके पास 20 डिवाइसेस हैं, या आई डोंट नो मोर हैं, so basically you can cover from whole Multan to Lahore area through these 20-30 devices, and then you can connect, everybody will be using that network। और उसके फिर आप देख लें, आप बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, आपकी कार थेफ्ट खत्म हो सकती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू वेल। एक और और उसका इंसेंटिव है, उसके इंसेंटिव्स भी हैं। फिर एचएनटी टोकन जो कि अभी आई थिंक 25 पे है, and it's really bullish, it's 29 actually 38 27 पे चला गया है। I saw it last time on 20 just few days ago। so ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आप बुलिश हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इस वजह से क्योंकि ये इंडस्ट्रियल और जो यूज केसेस है वो मैसेज के साथ है, so this will remain। उसका एक और इम्पोर्टेंट यूज केस जो है ना बेसिकली वो ये है कि अगर आप जो नेट यूज करते हैं
मतलब जिस तरह 5G हो गया, 4G हो गया, उसके अलावा मतलब इवन आपका जो वाईफाई वगैरह भी हो गया, ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। आपको मोबिलिंक और जो भी टेलीनॉर, ठीक है, वो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपका जो ICPs हैं, PTCL है, जो भी और है पाकिस्तान में, तो वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि जी वो क्या कहते हैं, मुहर्रम है या कुछ है, ईद है, तो वो जी सेल फोन ही बंद कर देते हैं, होता है ना हाँ पाकिस्तान में। अब वो सेल फोन बंद कर दिया, आपकी कनेक्टिविटी तो होगी खत्म। तो वो बेसिकली एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है कनेक्टिविटी के ऊपर। या जिस तरह आपने देखा है किसी भी मुल्क में अपराइजिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, वो ट्विटर बंद कर देते हैं, वो सारा कुछ बंद कर देते हैं। अब इस केस में मतलब अगर आप हीलियम अगर नोड अगर आप खुद से रन कर रहे हो या इस तरह, तो उस केस में तो ये है कि आपको कनेक्टिविटी बैक एंड पे तो लैन से ही आ रही है, मतलब आपने अपनी इस हीलियम हॉटस्पॉट को लैन से कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप उसको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें कि आपके पास मतलब एक मतलब कंप्लीटली कनेक्टेड मतलब वेल कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है, जो कि ओवर द बॉर्डर भी जा रहा है, तो उस केस में आपका जो मतलब फर्ज करो अफगान बॉर्डर के ऊपर, मतलब आप अफगान बॉर्डर की एक साइड पे आपके पास हॉटस्पॉट है, दूसरी साइड पे भी है, ठीक है, और इधर वाले हॉटस्पॉट पाकिस्तान में सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस केस में आपका एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है आपके पास, जिसके ऊपर एक किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। अगर मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस बंद कर देती है, तो आप थ्रू हीलियम जो है आप अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब यू कैन फाइंड अ वे टू गो ओवर दिस, गो ओवर द ऑब्स्टिकल्स। एग्जैक्टली, सो इसके यूज केसेस अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बट हम पॉजिटिव ही बात करेंगे। तो इसी से अगला प्रोजेक्ट इससे खैर रिलेटेड तो नहीं है प्रोजेक्ट अगला, थैंक यू रिलेटेड बिलाल। तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बेसिकली ये सारे जो हैं इनके वो डिफरेंट जो मैं बता रहा था वो माइनर्स जो हैं वो हैं। अब इसमें ये जो LORA इसको मिला के नहीं पढ़ना, तो ये जो है ये है लॉन्ग रेंज वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब नेटवर्क्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट डेजिग्नेशंस होती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंशिएशन होती है बेस्ड ऑन कि वो कितना एरिया कवर करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो कि ब्लूटूथ रेंज का होता है। लैन आपका लोकल एरिया होता है, वन बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ। वैन आपका होता है मतलब वाइड वाइड एरिया, जो कि ऑलमोस्ट आप कह लो फ्यू ब्लॉक्स। और उसके बाद जो है आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि ऑलमोस्ट सिटी वाइड होता है। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। अब ये मोस्टली जो है ये इनके लॉन्ग रेंज वैन वाले हैं, लेकिन ये वाला जो है ये 5G वाला भी एक है, तो सपोजिटली जो है इट विल गिव 5G कनेक्टिविटी। तो ये बेसिकली हीलियम था। वी चेन का भी पूछा था AYB ने, तो वी चेन बेसिकली वही कर रहा है कि क्या कहते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, तो उसमें नॉर्मली आजकल मतलब जिस तरह कार मैन्युफैक्चर हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो आप उसके जो सारे पार्ट्स हैं आप उसको बार कोड या फिर RFID चिप्स के थ्रू, वो RFID टैग्स के थ्रू जो है आप उसको मतलब स्कैन कर लेते हैं, और आप ट्रैक कर लेते हैं कि जी ये वाला पार्ट इसी कार में जाना था, इसी कार का था, और ये वो ये सारा कुछ तो अभी भी अवेलेबल है। तो लेकिन अब उसमें फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आ जाता है कि वही आप उसको एक सेंट्रल डेटाबेस में मेंटेन कर रहे हैं, और वो डेटाबेस जो है वो करप्ट हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो इस केस में ये है कि मतलब ई चेन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सोल्यूशन है ये रिटेल के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रीज के लिए है। और फिर इसका वो इन दी एंड मकसद वही है कि अगर आपने मतलब RFID टैग है या जो भी बार कोड है या कुछ है, वो आपने स्कैन कर लिया है, तो आप फिर उसको जो है ब्लॉकचेन पे ले जाते हो। तो आप उसको ब्लॉकचेन पे ले जाएं, फिर आपके पास एक इम्यूटेबल रिकॉर्ड आ गया कि जी ये फलां पार्ट जो है ये इसी कार में गया था। या आप जो है वो मतलब प्रोडक्ट्स को जो है फ्रॉम इंसेप्शन टू क्या कहते हैं डेस्टिनेशन जो है वो ट्रैक भी कर सकते हो कि जी ये जो प्रोडक्ट है ये इस शिप में गया, इधर से इधर गया, इस पोर्ट पे गया, इधर से इधर गया, वो सारा कुछ जो है आप वो मेंटेन कर सकते हो। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का वी चेन का। और वी चेन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इनका अपना वेट टोकन है। वेट टोकन जो है वो बेसिकली वही जिसके थ्रू आप ट्रैक कर रहे हो। और ये वी चेन थोर जो है, वी थोर टोकन, ये गैस है इस केस में। मतलब इथीरियम के केस में हम गैस की बात करते हैं ना, इथीरियम के केस में इथीरियम वो कमोडिटी भी है जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इथीरियम बजाते खुद मतलब एज अ गैस भी यूज़ होता है। मतलब अगर आप ये कंसिडर कर लें कि एक कार है और एक आप उसमें गैस डाल रहे हो उसको चलाने के लिए, तो इस केस में मतलब कार और गैस अलग हैं, इथीरियम के केस में वो दोनों एक हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो टोकन है। वी थोर जो है वो सॉर्ट ऑफ जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो उन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ होता है, और
वीईटी जो है वो बेसिकली वो चीज़ है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। कूल। मैं ऑडिबल हूँ या नहीं? यस। अच्छा अच्छा, थैंक यू। यार ये काफी एलैबोरेटिव डिस्कशन हुई है इस पे, और ये काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। वी चेन भी अच्छा है, प्रैक्टिकल है। तो आगे जाके जो ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट सर्वाइव करेंगे, या आज आपने जिसमें इन्वेस्ट करना है, ऑलवेज लुक फॉर दोस प्रोजेक्ट्स जिनका यूज केस आगे होगा, अदरवाइज ऑल अदर विल वैनिश वन डे, जब तक उसका कोई प्रॉपर यूज केस नहीं आएगा। जिसमें वी चेन है, इट हैज सर्वाइव्ड years. H&T is just new in the game, एंड और ये काफी आगे जाने वाले प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि जब लोग यूज करेंगे, क्योंकि आगे जो ये वाली जो डिकेड है, जस्ट इमेजिन इन 2030, सो आपका ऑन एवरेज जो रिसर्च है उसमें यही कहते हैं कि 50% ऑफ योर होम, इवन टेस्ला हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रोबोट। तो और अमेजोन ने भी अपना एक होम रोबोट इंट्रोड्यूस कर दिया है, which is automatically connected to all the Amazon devices in your home and also with other devices. तो उस लिहाज से अगर आप देखें हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट विल कम टू यू। तो उस वक्त खरीदने से बेहतर है कि आप अभी इन्वेस्ट कर दें उसमें। इट्स मोर लाइक अ स्टॉक, कि आपने एक कंपनी की प्रोग्रेस देखी, वो प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन भी है, तो इसलिए आप अपना पैसा उसमें डालें। सो ओवर द इयर्स आई हैव अ कोलीग जिसने डिज्नीलैंड के स्टॉक्स लिए हुए हैं, जस्ट टू गो टू डिज्नीलैंड विद हिज चिल्ड्रन, क्योंकि वो कहता है कि जब मेरी बेटियां 18 इयर्स की हो जाएंगी तो माय डिज्नी स्टॉक्स विल बी ह्यूज, और मैं उनको सेल करके मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा। और लाइक पीपल प्लान फॉर 10 इयर्स, 15 इयर्स, क्योंकि क्रिप्टो में आप इस तरह से कर नहीं सकते। आज कोई बनी का केक स्वैप आ रहा है, कोई डायनो स्वैप है, कोई क्रेल है, व्हाटएवर, दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ, फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स। सो रिस्पेक्ट योर मनी एंड रिस्पेक्ट एंड इन्वेस्ट इन गुड प्रोजेक्ट्स। तो इन सबको बताने का इतनी डिटेल में यही हमारा मकसद है। थर्ड जो पॉइंट है वो प्रोटोकॉल एक है, उसका भी कोई टोकन नहीं आया है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हॉप प्रोटोकॉल। तो उसका मैंने थोड़ा सा टीजर भी दिया था आज। तो इस पे भी डॉक्टर बिलाल ही बताएंगे, इन्होंने ही मुझे बताया कि वो हाँ बेसिकली प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वेरी 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 अमेजिंग। हब प्रोटोकॉल का बेसिकली कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट, कि आपके पास इथीरियम लेयर 1 है जो कि मतलब इथीरियम इटसेल्फ है, ठीक है, और आप फिर स्केलेबिलिटी के लिए जो है आप लेयर 2 सॉल्यूशंस ले आते हो जो कि ऑन टॉप हैं। तो मतलब आप मेन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लेयर 2 में करते हो, और फिर आप लेयर 1 को एज अ सिक्योरिटी लेयर यूज़ करते हो। तो मतलब ये रोल अप सेंट्रिक जो है अप्रोच, ये बेसिकली इथीरियम में मतलब विटालिक ने कहा है कि ये इथीरियम फॉलो करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो है बाकी सारी लेयर्स 1 जो है उनको इन दी एंड भी लेयर 2 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ लेयर 1 के साथ मतलब इन फ्यूचर में स्केलेबल नहीं हो सकते। तो इसलिए बेसिकली अगर आप अब लेयर 2 पे आप आ जाते हो, फर्ज करो आपके पास पॉलीगॉन है, आपके पास आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, ये सारे हैं, तो उसमें फिर क्या कहते हैं, आपके पास फर्ज करो पैसे हैं, मतलब जो भी रैप डीथ है, कोई भी टोकन है, वो आपके पास पॉलीगॉन के अंदर है। आपने कोई ऐप यूज़ करनी है जो कि पॉलीगॉन पे मतलब अवेलेबल नहीं है लेकिन आर्बिट्रम पे अवेलेबल है। तो अब आप कहते हो कि जी मैं अपने फंड्स जो हैं वो आर्बिट्रम में लेके जाना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मतलब नॉर्मली जो है वो ब्रिज करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो उस केस में आप जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है आप इथीरियम मेन नेट पे लेके आओगे उसको लेयर 1 पे, और फिर आप उसको इथीरियम से दोबारा लेके जाओगे आर्बिट्रम के अंदर। तो उस केस में फिर आपको एक तो मतलब दो साइडों पे फीस देनी पड़ेगी, और दूसरी बात ये है कि फिर जो हम स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो फिर सॉर्ट ऑफ मतलब मकसद फौत हो जाता है ना, कि अगर आप लेयर 1 पे आते हो दोबारा लेयर 1 से उतर जाते हो। तो हब प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर आप मतलब लेयर 2 वर्ल्ड के अंदर ही फेर रहे हैं, जिस तरह आप कहो कि जी क्या कहते हैं, आप मतलब फर्स्ट फ्लोर पे फेर रहे हो या किसी टेरेस पे फेर रहे हो, और अगर दो बिल्डिंग्स आपस में अगर कनेक्टेड हैं, मतलब जिस तरह आप वो ले लो जो क्या पेट्रोनस टावर्स हैं मलेशिया में, तो उनका बीच में एक ब्रिज है दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान। अगर आप टॉप फ्लोर से फेर रहे हो तो अगर आप उस ब्रिज से दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हो तो वो ज़्यादा आसान है आपके लिए, बजाय कि आप फुल नीचे आओ और फिर बाहर निकल के दूसरी बिल्डिंग में जाओ फिर लिफ्ट से ऊपर जाओ। तो ये सॉर्ट ऑफ वो वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लेयर 2 में फेर रहे हो तो आप डायरेक्टली पॉलीगॉन से जो है आप उसमें चले जाओ,
आर्बिट्रम में। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि जिस तरह यहाँ पे ये अभी लाइव है, बेसिकली आप यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे इनके पास USDT अभी फ़िलहाल थोड़े से ही हैं, USDT, USDC, मैटिक, डाई और ईथ। अगर आप कहते हो मैंने अपने ईथ ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो आपसे पूछता है कि किस नेटवर्क से आपने भेजने हैं। आप कहते हो जी मैं पॉलीगॉन पे हूँ और आपने भेजना है आर्बिट्रम पे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कितने ईथ आपने भेजने हैं और उसके बाद वही अप्रूव और सेंड, जैसे आप यूज़ करते हैं डीफाई को। तो उसमें जितना टाइम आपको फाइनलिटी रीच करने में लगता है ना इस सेंडिंग या सोर्स नेटवर्क में, उतने टाइम में आपका जो है वो फंड जो है वो आर्बिट्रम में पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप जो ये है उनसे डिफरेंट है जो ब्रिज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी, अब तो डिफरेंट मेथड्स आ गए हैं, लेकिन नॉर्मली एक प्लाज्मा ब्रिज है जो आपका इथेरियम चेन से आपका जो भी एसेट है वो पॉलीगॉन चेन पे, पॉलीगॉन पे, हाँ हाँ। एग्जैक्टली वो उस पे लेकर आता है लेयर 2 पे। हम्म लेकिन उसको आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऑन एवरेज, वैसे तो वो कहते हैं कि 7 डेज लगते हैं, हम्म बट हियर यू कैन अचीव दैट इन फ्यू मिनट्स। तो इस वजह से इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। इनका कोई टोकन नहीं है, सो वी हैव फाउंड इट, और अगर इसका कोई टोकन लॉन्च होता है सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो इसलिए लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पहले प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, बाद में उसका यूज केस देखते हैं कि व्हाट विल बी आवर यूज केस फॉर द टोकन। तो जब इसका आएगा तो जरूर मेरे ख्याल में इट विल बी वन ऑफ द हॉट टोकन टू हम्म बाय। हाँ, हम इस पे बेसिकली नज़र रखेंगे। मतलब आप लोगों को बताने का मकसद ये था, जिस तरह हम कह रहे थे कि रिसर्च एंड पेशेंस। तो आइडिया ये है कि मतलब जो टोकन है ना किसी भी प्रोजेक्ट का, उस टोकन का एक यूज केस होना चाहिए, प्रॉपर यूज केस उस प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब टू द मून नहीं, मतलब प्रॉपर यूज केस होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर उठा के पढ़ते हैं और अगर उसने अपने वाइट पेपर के अंदर ये नहीं मेंशन किया हुआ ना कि वो टोकन किस लिए यूज होगा, तो उस प्रोजेक्ट को तो मतलब हाथ ही ना लगाए ना सिरे से। तो पहला ये मेरे ख्याल में तो ये पहला रूल होना चाहिए आपका। तो और नॉर्मली अगर आप देख लें जो मतलब इस तरह के शेडी किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, वो पहले टोकन निकालते हैं और मतलब अगर आप उनके वेबसाइट पे जाके देख लें, लिखा होगा हम ये बर्न कर देंगे, वो ये कर देंगे, इधर स्टेक हो जाएगा, उधर बर्न हो जाएगा। वो सारे वो जो बज़वर्ड्स आजकल चल रहे हैं ना, वो सारे लिख के और ये हमारा टोकन है और ये है वो है। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स को देख लें तो वो मतलब उनका मकसद होता है कि प्रोजेक्ट चले, ठीक है। टोकन की अगर नीड होगी तो तब टोकन आएगा ना। मतलब जिस तरह यूनिस्वाप वगैरह का टोकन है, वो एज अ गवर्नेंस टोकन यूज होता है ना, उसके अलावा तो उसका एज सच कोई इतना यूज नहीं है यूनिस्वाप के अंदर। मतलब आप स्वैप कर रहे हो दो एसेट्स को, लेकिन गवर्नेंस के अंदर वो यूज होता है कि यूनिस्वाप प्रोटोकॉल की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी, वो टोकन होल्डर्स डिसाइड कर सकते हैं। तो ये उसका बेसिकली मतलब यूज केस है। लेकिन अगर कोई भी यूज केस नहीं है तो फिर उस टोकन मतलब उसका टोकन होने की जरूरत नहीं है ना। अभी अगर आर्बिट्रम का भी ऐसा कोई टोकन नहीं है अभी मेरे ख्याल में, नहीं है ना। फिर अभी ऑप्टिमिज्म का भी नहीं है, क्यों। और ये दोनों ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम का भी, दोनों का नहीं है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों रनिंग लेयर 2 सॉल्यूशन हैं इस वक्त उसके इथेरियम के। लेकिन अभी यस। इनका टोकन नहीं है क्योंकि उनको टोकन की नीड नज़र नहीं आई अभी तक। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि इस पे हम नज़र रखेंगे। अगर जैसे ही इसका टोकन आता है तो फिर हम इंशाल्लाह आपको भी बताएंगे, खुद भी इन्वेस्ट करेंगे। जिस तरह एज एन एग्जांपल अगर आप देख लें DYDX को, तो DYDX जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कोई 2 या 2.5 साल से मतलब डेवलपमेंट में था। और अगर आप D5 की बात करते हैं तो D5 के अंदर जो ऑर्डर बुक बेस्ड मतलब एक्सचेंज बनाना जो है ना, वो काफ़ी मुश्किल है। तो सारे जो हैं वो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर वाली अप्रोच यूज़ करते हैं। तो DYDX जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने मतलब उस वक्त तक अपना टोकन नहीं निकाला। उन्होंने अपना टोकन अभी निकाला है मेरे ख्याल में रिसेंटली इस साल। ये कहाँ पे निकाला है इन्होंने, डेट क्या है यार, 9/9। तो इन्होंने सितंबर के अराउंड इन्होंने की निकाला है। और इसकी जो है क्या कहते हैं स्टार्टिंग प्राइस अगर आप देखें तो वो थ्री डॉलर थी या इस तरह कुछ थी। शुरू में इसकी विक आई थी, यहाँ पे ये सही शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसको ट्रेडिंग व्यू में देखें तो $3 से स्टार्ट होता है, फिर ये इसकी कैंडल जाती है सीधी ऊपर। तो अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट पर नज़र रखें तो आप टाइम पे एंट्री मारें और आप उसमें रहें। अब बात यह है कि एंट्री तो आप शिबा में या वो फ्लोकी में भी मार सकते हैं और वो भी 5x कर जाते हैं। लेकिन बात यह है कि मतलब मेरी नज़र में प्रोजेक्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि
फ्लोकी में मतलब 5x करने के चांस भी उतना है, -5x करने का चांस भी उतना है। इस केस में ये है कि अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट को रिसर्च करके प्रॉपर टाइम पे उठाएंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही जाएगा और ऊपर ही रहेगा। मतलब देखें इसने जो है वो 26-27 पे गया था, अभी थोड़ा सा उसने कंसोलिडेट किया है, लेकिन अभी भी वो 15-16 पर है, क्योंकि अभी ओवरऑल थोड़ा सा डंप आया था, अब दोबारा उठ जाएगा किसी पॉइंट पे। सेकेंडली अगर सिमिलर एग्जांपल आप देखें सीरम की, तो सीरम जो है उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये भी ऑर्डर बुक बेस्ड जो है वो बनाना चाह रहे थे डेक्स, और इन्होंने फिर सोलाना के ऊपर बनाई है, और इनका बेसिकली ये जो बैक्ड है FTX के जो है अलामेडा रिसर्च जो है उसकी, सैम बैकमैन फ्रीड की, तो उसने इसको बैक किया हुआ है, उसका प्रोजेक्ट है ये बेसिकली। और अगर इसको भी आप देखें तो ये जो है वो किसी पॉइंट पे $1 या इस तरह कुछ था, और ये एक पॉइंट पे जो है वो 10 से ऊपर गया है, दोबारा वो 11 पे गया है और इस तरह। तो अगर आप उस पर टाइम पे प्रोजेक्ट पे नज़र रखें तो आप उसमें जो है वो टाइमली एंटर हो सकते हैं। तो ये DYDX जो है ये स्टारकवेयर पे बेस्ड है, उसका भी अभी तक टोकन नहीं आया, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। थैंक यू बिलाल। या तो उसके अगर अलावा किसी को बेसिकली मैं अच्छा सिर्फ कंटिन्यू करना ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़रा स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दूँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली मैं मोस्टली जो है वो इथीरियम पे नज़र रखता हूँ, लेकिन अगर आप लोग किसी और जो है उसके अंदर क्या कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर या किसी और डायरेक्शन में नज़र रख रहे हैं तो मतलब आइडियाज़ डिस्कस करते रहें स्मोकर्स में और आगे पीछे। एग्जैक्टली अगर कोई सोलाना को फॉलो कर रहा है बहुत ज्यादा, उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, हम ज्यादा ईथ, क्योंकि हम आई थिंक वी आर काइंड ऑफ ओल्ड इन द मार्केट, सो वी स्टिक टू बिटकॉइन एंड इथेरियम मोस्ट, लेकिन हम सोलाना को भी एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। सो प्लीज कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछें ताकि फिर हम इसको कंक्लूड करें सेशन को। जी अस्सलाम वालेकुम फराबी भाई। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मैं थोड़ा लेट आया, मुझे नहीं पता कि आप पहले बता चुके हैं एच&टी के बारे में या नहीं, तो अगर नहीं बताया तो प्लीज़ बता दें, या फिर अगर रिकॉर्डेड है तो मैं उसमें सुन लूँगा। दूसरा जी अच्छा। दूसरा ये मेटा की बड़ी हाइप है कि पता नहीं फेसबुक कोई क्रिप्टो को टेक ओवर करने लगा है, तो इसमें भी थोड़े अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि ये क्या चीज़ है और क्या रिलेशन है क्रिप्टो से। अच्छा, मेटावर्स ओवरऑल, मेटावर्स मैं बस बहुत अगर सिंपली डिफाइन करूं, थोड़ा बिलाल इसको मे बी ही कैन डिफाइन अ लिटिल बिट मोर बेटर इन अ वे। आप ये समझे मेटावर्स इज मोर लाइक लिविंग अ वर्चुअल लाइफ, ठीक है, क्योंकि अब जिसमें आप यू कैन डू एनीथिंग इन इन दैट वर्चुअल लाइफ। आप अपना जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वो सक्सेसफुल हो सकता है, और देयर सो मींस यू आर हैविंग अ वर्चुअल लाइफ। इसको आप इस तरह से देखें, ये मेटावर्स है। तो फेसबुक इसकी तरफ जा रही है जिसमें AR है, VR है, जिसमें अगेन IoT बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी, और यही फ्यूचर है आगे जाके, और जिसमें ब्लॉकचेन भी है। एक जगह मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें वो कह रहे थे कि नहीं जी उसमें क्रिप्टो करेंसी का कोई यूज नहीं होगा और एटसेट्रा, ऐसा नहीं है, क्योंकि द मोर वी ग्रो, फेसबुक is just starting, some other companies have also started this metaverse thing, Facebook is taking the lead, Meta is taking the lead, अब तो वो Meta है। तो उसमें उसमें मेरे ख्याल से जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कोई चीज़ अगर वर्चुअल प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मेरे ख्याल से वो क्रिप्टो से ही बाय की जा सकती है, NFT बेस्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। NFT बेस्ड हाँ NFT बेस्ड, तो सो दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि माना कितना चला गया ऊपर, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल, सैंडबॉक्स, आप इसमें इन्वेस्ट जरूर करें आगे जाके। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि ये इसका आगे आ रहा है एलिस, एक आपकी ये जो गेम आ रही है आपकी ये एक्सी इन्फिनिटी है, ब्लॉकचेन पे गेम्स हैं, ये आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये, क्योंकि अब वर्ल्ड इज चेंजिंग, एंड अब और तरह से आपको पता है कि मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग सा थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। Highest number of people have resigned in August, despite post-corona trauma and inflation and problems.
पीपल हैव रियलाइज्ड कि यार अब तो ऑफिस जाके क्या करना है, हम तो क्रिप्टो कर सकते हैं या हम कुछ और कर सकते हैं, हम होम रन बिजनेस कर सकते हैं. देयर आर मोर रेजिग्नेशंस इन यूएस इन इंटायर हिस्ट्री जस्ट इन अगस्त. इसी तरह यूरोप में हो रहा है. मैंने खुद रिजाइन किया अगस्त में, लेकिन मैं अब दूसरी जॉब पे मूव कर रहा हूँ. बट इट इज एक्चुअली हैपनिंग. People are moving away from offices. If you go anywhere here, the cities have become ghost town. और तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है और हो गया. वी आर गोइंग मोर डिजिटल. As we are going more towards digital, this cryptocurrency case, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता. ये वैलिड है. इसका यूज भी ज्यादा होगा. माना को आप देखें वो क्यों गया ऊपर, क्योंकि वर्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से लोगों ने फोरसी कर लिया उसको. डोंट थिंक अबाउट द परसेंटेज गेन्स, थिंक अबाउट समथिंग. अब मुझे इतनी अपने ऊपर भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था. 2019 में आई वाज बाइंग अ लैंड. इट वाज मेयर लाइक $200 और समथिंग. इथेरियम की उसकी कोई प्राइस थी, माना डिसेंट्रलैंड पे. और मैंने कहा नहीं यार, इसका मैं क्या करूंगा, सो जस्ट लीव इट. यार आप यकीन करें, वो ही ऑलमोस्ट 400,000 यूरोस की है, सॉरी $400,000 की है, जो $200 की थी. सो आप इस चीज को देखें और कोई एक्सप्लोर करें. सैंडबॉक्स एक है अच्छे, उसमें कोई गेम्स हैं. तो मेटावर्स इज बेसिकली इज योर डिजिटल वर्चुअल लाइफ. सो ऑफ कोर्स डिजिटल करेंसीज उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा. I would like to add as well, if I can. Yes, yes. Like you can imagine the future as a virtual space, right? अगर आप virtual reality के उस पे देखें, so let's say you are meeting up some friends at an art gallery. So you can go to the art gallery and you can look at digital assets and NFTs and buy them on that space. इस तरह करके that's the video. Facebook पे कोई 1.5 घंटे की उन्होंने वीडियो डाली है. So they're showing all the kinds of things they can do and the products they're building. Absolutely. और उनके सबसे ज्यादा वो जो पावर ले रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की, they are opening 10,000 jobs in Europe. इधर तो बहुत बuzz है अब. And people are moving towards this. It's a good question. जो हमने वैसे HNT और IOTA तो वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, उसको हमने बहुत डिस्कस किया है. IoT सॉरी और HNT और Helium. लेकिन दिस मेटावर्स थिंग इज द नेक्स्ट बज़वर्ड. आप ये देख लें, ऐसे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके पीछे से मेटा लिखा हुआ है. दे आर 50-70% अप. हाँ, और एक इंडेक्स भी है, मेटावर्स इंडेक्स. हाँ, वो मैं देख रहा था, जिसमें तमाम मेटा जो रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उनका एक इंडेक्स बना हुआ है. एग्जैक्टली, मोर लाइक ETF. या मेटावर्स का बेसिकली अगर मैं ऐड करूं, फराबी ने मतलब काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मतलब मेटावर्स मतलब ऑलरेडी आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है, अभी एक डिबेटेबल वो है, और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो भी डिबेटेबल है सॉर्ट ऑफ. लेकिन वो जो फराबी ने कहा बेसिकली मतलब वर्चुअल एग्जिस्टेंस. लेकिन अगर मतलब किसी ने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स देखी है तो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आप इस तरह भी देख सकते हो कि मतलब डिफरेंट टाइमलाइंस हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है. तो वो सारी टाइमलाइंस जो हैं वो आपस में इंटरमिंगल कर सकती हैं. अब किस तरह, अब मतलब फर्ज करो आप GTA खेलते हो, ठीक है, आप GTA खेलते हो और आप कोई और गेम खेलते हो, कोई ले लो, काउंटर स्ट्राइक ले लो, ठीक है. तो नॉर्मली वो दोनों जो हैं वो सेग्रीगेटेड मतलब गेम्स हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है एज सच. तो मेटावर्स का एक कॉन्सेप्ट जो मतलब देख रहे हैं वो ये है कि आपके जो एसेट्स हैं, मतलब नॉर्मली अगर GTA के अंदर भी अगर मैं कोई कार ओन करता हूँ, मेरे गराज में कोई 5 स्पोर्ट्स कार्स खड़ी हुई हैं, तो वो मतलब उसी गेम के अंदर है, उसकी कोई और वो नहीं है यूटिलिटी, ठीक है. मैं जो मेरे दोस्त वो गेम खेलते हैं मैं उनको दिखा सकता हूँ कि ये देखो ये मेरा गराज है, ये मेरे पास गन्स हैं, ये मेरे पास कार्स हैं. लेकिन मतलब उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो अपने एसेट जो आप ओन करते हो, मतलब जिस तरह आप अपने एक्जी ओन करते हो या आप वो GTA के अंदर कार्स ओन करते हो या जो भी है, तो वो एज एन NFT आप ओन करते हो, वो आप अपने वॉलेट में लेके आ सकते हो. और फिर मतलब आइडियली जो ये जो सारी गेम्स होंगी तो वो सॉर्ट ऑफ जो है आप अपने एसेट्स को मतलब एक गेम से दूसरी गेम में ले जा सकते हो. अगर आपके पास काउंटर स्ट्राइक में एक गन है सॉर्ट ऑफ, तो अगर आप कोई और फर्स्ट पर्सन शूटर खेल रहे हो तो आप सॉर्ट ऑफ आप वो ओन करते हो, आप उसको उधर भी लेके जा सकते हो. ये सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट गेम्स और इस तरह का मतलब एक ही यूनिवर्स है. और जो सारा कुछ है वो उसी के अंदर एग्जिस्ट करता है. जिस तरह वो फराबी ने माना की बात की, माना है, उसी तरह वो वर्चुअल लैंड वाले और भी हैं.
अब आप कोई एलिस खेल रहे हो, एलिस में आपका फार्म है, या जिस तरह वो एनिमल क्रॉसिंग है, एनिमल क्रॉसिंग के अंदर भी आपके फार्म्स होते हैं, आपकी वो होती है, मतलब आप अपना वो एनिमल क्रॉसिंग वाला जो फार्म है वो आप सॉर्ट ऑफ उसको माना में ले जाओ, या माना के मतलब वो एनिमल क्रॉसिंग के अंदर जो आपके पास एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, आप उसको माना में ले जाओ, सॉर्ट ऑफ इस तरह की कनेक्टिविटी। और दूसरा, अगर आप उसका देखें, सेकंड लाइफ एक गेम थी और ईव ऑनलाइन भी है, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं जिसमें मतलब अगर आप उनके वो कन्वेंशंस देखें और उनके फैंस देखें, तो वो मतलब कुछ लोग तो उसके अंदर एक सेकंड जिंदगी गुजारते हैं पूरी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब अपनी जॉब्स छोड़ के सेकंड लाइफ के अंदर वो बिजनेस करते हैं, सेकंड लाइफ के अंदर वो वर्चुअल क्लोथ्स बना के बेचते हैं, शूज बना के बेचते हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी मतलब किसी लड़की से मिले या जो भी उनकी आपस में शादियां होगी सेकंड लाइफ के अंदर मिले। तो कॉन्सेप्ट इस तरह का ये है कि सेकंड लाइफ के अंदर बेसिकली वही इन दी एंड आपके पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, और ईव ऑनलाइन के अंदर भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। तो किसी पॉइंट के ऊपर मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है या कोई इस तरह का, तो वो जो कंपनी है वो बीच में आके मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या जो भी, तो वो इन दी एंड जो कंट्रोल है वो कंपनी मेंटेन करती है। इस केस में ये आइडिया है कि आपके पास गेम्स हैं, ठीक है, उसमें डिसेंट्रलाइज्ड है, जो आपके एसेट्स हैं वो आप खुद से ओन करते हो, और अगर उसमें आप बीच में वर्चुअल रियलिटी को भी ले आते हो तो आप मतलब आप उस गेम के अंदर आप इमर्स भी हो सकते हो, और ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ कंबाइन होके जो है वो सॉर्ट ऑफ मेटावर्स बन जाएगी। तो मेरी नज़र में अभी मेटावर्स जो है वो एज सच मटीरियलाइज नहीं हुई, लेकिन मतलब हम उस तरफ चल रहे हैं। मतलब एनएफटी बेस्ड जो है आप वो एसेट्स को ओन करोगे, और हो सकता है कि आपका कोई एवटार भी हो जो कि आप अगेन एज एन एनएफटी ओन करते हो, और आप फिर उस एवटार के थ्रू आप पहचाने जाते हो कि भाई ये बिल एमोस है, ये इसका एवटार है। माना के अंदर भी यही है, एक्जी के अंदर भी यही है, जो भी मतलब गेम्स हैं, इलूवियम है, कोई और है, ये बिल एमोस आ गया जी खेलने के लिए। तो एग्जैक्टली। अगर वो जो मतलब एनिमे भी हैं इस तरह की, सोर्ड आर्ट ऑनलाइन है और इस तरह की हैं कि आप सॉर्ट ऑफ उस गेम वर्ल्ड के अंदर चले जाते हो। यस, तो ओवरऑल विजन आपने ये रखना है कि फेसबुक को चले हमारा अपना हेट्रेड अपनी जगह पे है, बट दे वर द ट्रेंड सेटर इन सोशल वर्ल्ड। उन्होंने चेंज किया पूरी जो सोशल कनेक्टिविटी है, एंड दे वर पायनियर इन इट, एंड आल्सो दिस गोइंग टू दिस मेटा थिंग, आई विल नॉट टेक इट लाइटली। अगर मैंने स्टॉक्स लेने हैं तो आई वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स। अगर मैंने कोई क्रिप्टो में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, आई वुड डेफिनेटली सी कि कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है जो मेटावर्स से रिलेटेड है, क्योंकि अब ये बज़वर्ड आया है और ये अब कैश आउट होगा अगले आने वाले टाइम में। सो जस्ट कीप एन आई आउट, और ज़रूर कोई आपको मिले प्रोजेक्ट हमें बताएं, जो हमें मिला हम आपको बताएंगे। सो वी ऑल आर कम्युनिटी, हमारा वो रिलेशन तो है नहीं कि मैं एडमिन है और हम आप कोई ऐसी कोई पता नहीं कोई बड़ी बात होगी है। सो वी लेकिन ऑल आर इन लेकिन वन इसमें भी कम्युनिटी। ड्यू डिलिजेंस जो है वो लाजमी है, क्योंकि मतलब जब लाजमी है, जब कोई हाँ। बज़वर्ड बन जाता है ना, तो उस बज़वर्ड के अराउंड जो है ना इतनी ज़्यादा फेकनेस आ जाती है ना। मतलब जिस तरह एआई एक बज़वर्ड बन गया लास्ट 10 इयर्स में, ठीक है, हर कंपनी कुछ ना कुछ एआई बेस्ड कर रही है। मतलब आपको एआई की ज़रूरत है भी नहीं ना उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो एआई का वर्ड यूज़ करके ना कि एआई बेस्ड फलाना फलाना, या जिस तरह ईवीज का आजकल बज़वर्ड चल रहा है, तो अगर आप वो निकोला को देखें तो वो पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो स्कैम है, ठीक है। तो और उसके अंदर जो है वो पब्लिक कंपनी है, और लोग उसके अंदर जो है लोगों ने उसमें बिलियंस ऑफ पैसा जो है ना वो डाला हुआ है। तो Exactly. तो ये जो है मतलब ड्यू डिलिजेंस लाजमी है, क्योंकि जब भी जिस तरह 5G बज़वर्ड है, ठीक है, तो बज़वर्ड्स का ये होता है कि इवन अगर आप एकेडमिक वो पेपर भी लिख रहे हैं ना, तो आप उसमें आइडियली अगर आप टाइटल में बज़वर्ड डाल दो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि अच्छा 5G फलाना फलाना फलाना, ठीक है। तो वो फिर इन दी एंड नॉइज बन जाती है। तो नॉइज को जो आपने करना है ना, क्या कहते हैं, मिटिगेट, वो आपने खुद करना है, ये आपके ऊपर भी है। मतलब हर I मेटावर्स think रिलेटेड इसमें प्रोजेक्ट नहीं इसमें उठा लेना, इसमें कहने का मकसद ये है, नहीं मतलब ड्यू नहीं नहीं डिलिजेंस नहीं, लाजमी है। आई थिंक जितने भी इधर मेंबर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ अभी कॉल में, ये तो हैं स्मार्ट है सारे। हम्म। लेकिन इनको अगर कोई मिले सो प्लीज कीप एन आई, हमें भी बताएं, हम भी रिसर्च करेंगे। ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है वी विल वेट इट टुगेदर, और इंशाल्लाह उसमें फिर इन्वेस्ट करेंगे। बट दिस इज समथिंग यू शुड लुक फॉर इंस्टेड, क्योंकि हमारे यहाँ तो कल्चर में है कि कोई भी डेवलपमेंट होती है तो वो कहते हैं ये यहूदी का है या ये फलाने का है तो छोड़ दो इसे, एंड वी ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड।
अब जो डिसेंट्रलैंड में जिसने जमीनें ली थी तो वो ही इज अ मिलियनेयर बिलियनेयर ऑलरेडी. लोग बहुत सारे बिलियनेयर हैं उधर ऑलरेडी एंड दे ओन नथिंग. It's all virtual, but it is changing. It looks weird, it is crazy, but world is crazy itself. तो आपको जैसे वर्ल्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना है. तो इसके साथ ही फिर एंड कर दें. आज का सेशन काफी लंबा हो गया. ये भी हमने सोचा था कि 45 मिनट्स करेंगे, लेकिन थैंक यू बिलाल, बहुत अच्छी प्रिपरेशन और डीप इनसाइट. काफी अच्छा लगा, मजा आया बात करके. और कोई अगर आपके क्वेश्चन है तो पूछ लें या फिर आप चैट में पूछ लें. ठीक है. और अगर कोई बात आप नेक्स्ट वीक डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी हमें बता दें, फिर हम नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे. डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली. एक तो मैं आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड द हीलियम माइनर, द बॉबकैट माइनर. एक्चुअली मैं आप जैसे बताया था बहुत पहले करना चाह रहा था, लेकिन 2-3 महीने पहले मैंने दोस्त से करवाया था. बिकॉज मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पे तो कोई हॉटस्पॉट्स नहीं है. ही इज इन न्यूयॉर्क और वहाँ पे उसके एरिया में थे काफ़ी. तो इट्स एक्सपेक्टेड टू यार आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज कट गई थी. We can't hear you. I'll just type it up. Okay. Okay. All right guys, so thank you so much. Thanks for joining. Take care. तो इंशाल्लाह फिर दोबारा अगले सेशन में मिलते हैं. जो दूसरे टॉपिक्स पे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप हमें बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीक वो करेंगे. So it will be our weekly practice कि हम आए ऑनलाइन और उसकी डिस्कस करें, कुछ सीखें और सिखाएं इंशाल्लाह ताला. ओके, अल्लाह हाफिज. Have a nice weekend. Allah Hafiz. Have a nice weekend. अल्लाह हाफिज. Bye.